السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ چارمینار کانسٹیٹوئنسی میں اسپیشل انٹینسو ریویژن کی ریویو میٹنگ۔ ایڈیشنل کمشنر چندرکلا نے الیکٹورل ڈاٹا میپنگ اور ووٹر ویریفیکیشن پر ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد کے چارمینار اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR کے سلسلے میں ایک اہم ریویو میٹنگ کی گئی۔ یہ میٹنگ چارمینار سرکل آفس میں ایڈیشنل کمشنر الیکشنز چندرکلا کی سربراہی میں ہوئی۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز، سپروائزرز اور بوتھ لیول آفیسرز نے شرکت کی۔ کمشنر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کنن کی ہدایت کے مطابق پری SIR میپنگ کی پروگریس کا جائزہ لیا گیا۔ چندرکلا نے آفیشلز کو ہدایت دی ہے کہ فیلڈ لیول ویریفیکیشن کو انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ ہر ووٹر کا ڈاٹا صحیح اور طور پر اپ ڈیٹ ہو۔ انہوں نے ڈسکریپنسیز دور کرنے اور ووٹر انفارمیشن اپ ڈیٹ کرنے اور بوتھ لیول مانیٹرنگ کو مضبوط بنانے پر خاص زور دیا۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک ٹون جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. کنچن باغ پولیس نے انٹر اسٹیٹ موبائل سنیچنگ گینگ کا پردہ فاش کیا۔ 6 ملزمان گرفتار، درجنوں سٹولن موبائلز اور اسپیئر پارٹس برآمد۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے انٹر اسٹیٹ موبائل سنیچنگ اور پک پاکٹنگ گینگ کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ گینگ حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں موبائل سنیچنگ اور تھیفٹس میں ملوث تھی۔ پولیس نے اس کیس میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں امباٹا نریش، بنالا ارون کمار، میکالا چرنجیوی، توٹا سوری، توٹا چندو اور سندیپ جیسوال شامل ہیں۔ انویسٹیگیشن کے مطابق 132 موبائل بیٹریز، 172 موبائل باڈیز اور 73 کیمرہ پارٹس اور آئی فون، سیمسنگ، ویوو، اوپو، ون پلس اور ریڈمی جیسے برانڈز کے کئی سٹولن موبائل فون برآمد کیے گئے۔ پولیس نے ایک بجاج پلسر موٹر سائیکل بھی سیز کی جو وارداتوں میں استعمال کی جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق گینگ کراؤڈڈ ایریاز جیسے بس اسٹاپ، مارکیٹس، ٹفن سینٹرز اور RTC بس اسٹیشنز کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ ملزم نیوز پیپرز اور شاپنگ کورز کا استعمال کر کے لوگوں کی جیبوں اور ہینڈ بیگ سے مہنگے اسمارٹ فونز چرا لیتے تھے۔ چوری شدہ فونز کو 1500 سے 2000 روپے میں بیچا جاتا تھا۔ یہ اسپیئر پارٹس میں توڑ کر موبائل ریپیئر شاپس کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ سید نذیر احمد کی کمپلینٹ پر یہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی جب ان کا سیمسنگ گیلیکسی Z Fold 5 DMRL ایکس روڈ کے پاس سنیچ کیا گیا تھا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کراؤڈڈ پلیسز میں اپنے موبائلز اور قیمتی سامان کی حفاظت کریں اور بنا پراپر بل کے سیکنڈ ہینڈ فونز خریدنے سے گریز کریں۔ تلنگانہ MCET 2026 کے ریزلٹس آج جاری کر دیے گئے۔ جو اسٹوڈنٹس منیمم کوالیفائنگ مارکس حاصل کر چکے ہیں انہیں کوالیفائڈ قرار کر دیا گیا، جبکہ منیمم مارکس سے کم لانے والے یا ایلیجیبلٹی رولز پر پورے نہ کرنے والے کو ڈسکوالیفائی مانا گیا۔ تلنگانہ میں ٹوٹل 2,82,195 اسٹوڈنٹس نے ایگزام دیا تھا۔ اس میں سے 2,17,998 اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہوئے، جبکہ تقریباً 64,197 اسٹوڈنٹس ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اوور آل پاس پرسنٹیج 77.25% رہا ہے۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR 15 جون سے شروع ہوگی۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR کا عمل 15 جون سے شروع ہوگا۔ اسٹیٹ چیف الیکشن آفیسر سدرشن ریڈی نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا۔ چیف الیکشن آفیسر سدرشن ریڈی کے مطابق 25 جون سے 24 جولائی تک گھر گھر جا کر ووٹرز کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ BLOز یعنی بوتھ لیول آفیسرز ہر گھر تک پہنچ کر انیومریشن فارمز اور تقسیم کریں گے۔ ہر
वोटर को 2 फॉर्म्स दिए जाएंगे। एक फॉर्म भरकर इलेक्शन अथॉरिटीज को वापस देना होगा, जबकि दूसरा फॉर्म वोटर के पास एक्नॉलेजमेंट के तौर पर रहेगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ऑनलाइन इन्यूमरेशन की सहूलत भी दस्तयाब होगी, जिससे वोटर्स घर बैठे अपनी डिटेल सबमिट कर सकेंगे। मुकम्मल फॉर्म्स जमा होने के बाद 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स दाखिल किए जा सकेंगे। तमाम ऑब्जेक्शंस की जांच के बाद 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट शाये की जाएगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक तेलंगाना में आखिरी बार 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल अंजाम दिया गया था। तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर ये कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन की जा रही है। वोटर्स से अपील की गई है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में पूरा ताउन करें ताकि वोटर लिस्ट को मुकम्मल और दुरुस्त बनाया जा सके। हाइड्रा ने कहा है कि हैदराबाद के मुश्किल चरवू लेक एरिया में कुछ रिलेटर्स गैर कानूनी एनरोचमेंट के लिए स्लम ड्वेलर्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक बिल्डर्स पहले लेक बफर जोन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर गरीब फैमिलीज को वहां बसा देते हैं ताकि एक्शन रोकना मुश्किल हो जाए। तेलंगाना के कनागढ़तला ओडेला मंडल में किसानों ने धान की बोरियां सड़क पर रखकर जोरदार रोड रोको प्रोटेस्ट किया। किसानों के इल्जाम है कि आईकेपी सेंटर पर जमा पैदी को लॉरी शॉर्टेज की वजह से राइस मिल्स तक नहीं भेजा जा रहा। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन में देरी की वजह से हजारों क्विंटल्स पैदी सड़कों पर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर पड़ा हुआ है। किसानों को खदशा है कि मृगशिरा कार्तिक के साथ आने वाली बारिशों से खुले में पड़ा धान खराब हो सकता है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के दौरान किसानों ने अथॉरिटीज से फौरन लॉरीज का इंतजाम करने और पैदी को राइस मिल्स तक शिफ्ट करने का मुतालबा किया। ये मामला पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। हैदराबाद के प्रजा भवन में श्रीनिधि एनुअल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद, जहां पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर दानासरी अनुसुया सीतक्का ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। मिनिस्टर सीतक्का ने कहा कि श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन तेलंगाना की खवातीन के लिए एक भरोसेमंद बैंक की तरह उभर रहा। उन्होंने बताया कि श्रीनिधि का कयाम माइक्रो फाइनेंस हरासमेंट से वुमेन को निजात दिलाने के लिए किया गया था। मिनिस्टर के मुताबिक अब तक 32 लाख से ज्यादा वुमेन को 24,000 करोड़ के लोन्स फराहम किए जा चुके हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस को मजबूती मिली। सीतक्का ने कहा है कि तेलंगाना का श्रीनिधि मॉडल इतना कामयाब रहा है कि दूसरी स्टेट्स भी इस मॉडल को फॉलो कर रहे। उन्होंने छोटे बिजनेस, होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और ट्राइबल वुमेन के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज फराहम करने पर भी जोर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 मई को 2 दिन की खास क्रैकडाउन मूवमेंट में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 474 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए। ज्यादातर मुलजिम 2 व्हीलर सवार थे, जहां 417 केसेस दर्ज हुए, जबकि 33 4 व्हीलर्स और 24 3 व्हीलर्स के थे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी और शहरियों से चेकिंग के दौरान ताउन करने की अपील की गई है। हैदराबाद में गोल्ड प्राइसेस में बड़ी गिरावट, ज्वेलरी बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 24 कैरेट गोल्ड 980 रुपए सस्ता, 22 कैरेट गोल्ड में भी 900 रुपए की कमी। हैदराबाद बुलियन मार्केट से गोल्ड बायर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। सोने की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत तकरीबन 980 रुपए कम होकर 1,56,930 रुपए पर आ गई। इसी तरह 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में भी लगभग 900 रुपए की गिरावट देखी गई, जिसके बाद नया रेट 1,43,850 रुपए हो गया। दूसरी तरफ सिल्वर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 3,04,900 रुपए पर मुस्तहकम। तेलुगु स्टेट में शादियों और ज्वेलरी शॉपिंग की प्लानिंग करने वालों के लिए ये एक अहम और खुशगवार अपडेट माना जा रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेंड्स और लोकल डिमांड के असर से प्रीशियस मेटल्स की कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
विजयवाड़ा हाईवे पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 अफराद को 400 किलो से ज्यादा गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी क्वांटिटी में गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन गांजे को दूसरी रियासत में स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अफराद को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में आज एक बड़ा आग का हादसा पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान का नुकसान या जख्मी होने की कोई खबर नहीं मिली। ये वाकया तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के वीलापिलम इलाके में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग दोपहर तकरीबन 1:15 बजे यूनिट 3 के करीब टरबाइन और बॉयलर फीड पंप एरिया में लगी। आग के साथ घना धुआं भी उठा देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के देहरादून में एक फुटवेयर शोरूम मेट्रो में मुस्लिम सेल्समैन के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हिंदुत्व सपोर्टर्स शोरूम के अंदर घुस गए और मुस्लिम एम्प्लॉयज को जिहादी कहकर जलील किया। खबरों के मुताबिक उन लोगों ने मुस्लिम स्टाफ पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी मजहबी पहचान छुपाते हैं और कस्टमर्स को धोखा देते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देवीधुरा का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर गर्ल स्टूडेंट्स ने वंदे मातरम के पुरजोश नारों के साथ चीफ मिनिस्टर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सीएम धामी ने स्टूडेंट से मुलाकात की, उनसे तालीमी एक्टिविटीज के बारे में बात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स को मेहनत और डिसिप्लिन के साथ अपनी तालीम जारी रखने की नसीहत की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। ये दौरा तालीम के फरोग और स्टूडेंट्स के साथ सीधा राब्ता मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कर्नाटका से एक बड़ा हादसा टल गया जब मैंगलोर से बैंगलोर जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। ये वाकया हसन डिस्ट्रिक्ट के शांति ग्रामा के करीब पेश आया, जहां ड्राइवर ने टायर के पास से धुआं और आग निकलते देखा। ड्राइवर ने फौरन सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए बस को साइड पर रोक दिया और तमाम पैसेंजर्स को जल्दी से बस से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और गाड़ी जल कर खाक हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा और सब लोग महफूज रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।